offer tools for transformation. And when that transformation happens within that person, this offering is of the highest order. मिल गया जो बाहर ना मिला, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। नमस्कार, आज रविवार है। आज एक्चुअली मुझे उठने में बहुत लेट हो गया है। रीज़न था कि कल मैं मुरबाड गया हुआ था और आते आते मुझे रात के 1 बज गए, लेट आते आते। तो अभी लेट हो गया है, जो मुझे जल्दी से ध्यान करना चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत करते करते ही 8 बज रहा है। तो अब मेरे दिन का शुरुआत हो रहा है। नीम और हल्दी का गोली तैयार है, अब इसको लूँगा और फिर उसके बाद ध्यान करूँगा और देखते हैं उसके बाद आज क्या प्लान बनता है। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरा लगता है, जो कल के वीडियो में भी बात कर रहा था, ये देखिए, जो कल मैं मुरबाड के जंगलों में इशू देख रहा था, वो आज यहाँ पे खेतों में दिख रहा है। मेरे जस्ट जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल में ही खेत है, इसमें आग लगा दिया गया है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि किसान को खेत साफ़ करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी है क्या इसको ऐसे साफ़ करना? वो तो वैसे भी गल जाएंगे, जब ये खेत जोता जाएगा और वो वैसे भी गल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, क्या ऐसी मजबूरी है कि ये मतलब करना ही पड़ता है वाला बात। तो कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि आज किस तरह का योजना बन पाता है और कैसा ब्लॉग बना पाता हूँ मैं। तो अब हो रहा है ब्रेकफास्ट कहिए, मेरे लिए यही लंच हो जाता है। एक ही बार मैं खाता हूँ 10:30-11 बजे। तो आज पोहा बना है, साथ में दही है और इसके बाद देखेंगे। भूख तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर इसके बाद भूख लगा तो फिर देखा जाएगा। तो देख के लग रहा है कि पोहा का स्वाद अच्छा है, तो खाते हैं। तो आज मेरा एक वॉलंटियर मीट है, ईसा फाउंडेशन रहा हूँ। अब ये शुरू होगा थोड़ी देर में। 21 डेज योगा चैलेंज फॉर जॉय एंड मेंटल हेल्थ। Namaskaram everyone. So welcome everyone to the 21-day challenge volunteers meet. निकला था वो धूमधाम से खुशियां खोज के लाने, गूगल में मिलती भी नहीं। बैंक में ढूंढा, बार में ढूंढा, ढूंढ लिए तहखाने, चुटकी भर हासिल ही हुई। टूट गया वो मस्त कलंदर, खुशियां खोज न पाया, हौसला भी हार हो गया। बूंद ली आंखें, बैठ गया वो बक बक ना दोहराया। मिल गया जो बात, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। What is Sadhguru's vision as a part of International Day of Yoga? What he wants to offer to the entire world? We will go through this. There are many things we can offer to people. You can offer food to the hungry. You can offer medicine to the sick. You can offer education to the illiterate. You can offer various kinds of help to the downtrodden. All this is wonderful, but if you are able to offer tools for transformation, and when that transformation happens within that person, this offering is of the highest order, because this will take that person through life and beyond. So these simple tools for transformation, which right now goes under the brand yoga, I want to create this opportunity for every one of you, that you can have this opportunity, because I'm sure in every one of you there is some longing. So now we want to offer possibilities for every one of you, so that you can also offer something to somebody. Starting from this, using this yoga day or the International Day of Yoga, we want to start this process that you can also offer tools of transformation to people around you and know the fulfillment of what it is and know the joy of seeing another human being blossoming in front of you. I want you to make use of this
transmission of Upayoga that many of you will be doing as a way of transforming yourself. Not just about, it is not a preaching for other people. It is a tool for transformation. If it doesn't transform you, how will it transform someone else? So make use of this in such a way that it will become a tool for your own transformation, offering this to people. I want you to have the power, the privilege and the responsibility of making that happen. This is my wish and my blessing. Please allow this to happen to yourself and everybody around you. तो अभी आपने सुना सदगुरु को। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है या अंतर्राष्ट्रीय दिवस है योग का। 1 जून से हम एक योगा चैलेंज शुरू कर रहे हैं 21 दिन के लिए। योगा ने मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव लाए हैं। इन 21 दिनों में मैं क्या क्या योगा प्रैक्टिस करूँगा वो आपको दिखाऊंगा। और वैसे तो मैं ऑलरेडी योगा कर रहा हूँ, लेकिन ये 21 दिन इसलिए है क्योंकि सदगुरु का एक विज़न है कि हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम वो दिन में कम से कम 10 मिनट तो योगा करे और जिससे वो उसका जीवन स्थिर हो सके। आज देखिए दुनिया में कितनी भयंकर त्रासदी हो रही है। कोविड के बाद मेंटल पेंडेमिक का प्रेडिक्शन किया जा रहा है। सदगुरु ने भी इसके बारे में बात किया है। तो ये ज़रूर मतलब ये एकदम ज़रूरी हो जाता है कि लोग अपने भीतर की तरफ मुड़े, अपने लाइफ में योगा को लाएं। मेरे लाइफ में योगा ने अद्भुत चमत्कार किए हैं। मैं इसके बारे में आगे चर्चा करता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग में से भी कोई जो योगा करना चाहते हैं अभी तक नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो वो बताइए, कुछ लिखिए ताकि हम लोग मिल के कुछ अनुभव शेयर कर सकें। जो नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर करिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या योगा करें तो बहुत सिंपल है, सदगुरु का एक ऐप डाउनलोड करिए और उसमें आपको मैं कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आगे चल के मैं बोलूँगा भी दूसरे वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना लंबा हो जाएगा। और वहाँ से बहुत सारे तरह का योगा है और एडवांस लेवल पर छोड़ दीजिए, आप बेसिक लेवल से शुरू कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे योगा है, उसमें उपयोगा है, तो वो सब शुरू करिए और धीरे धीरे फिर एडवांस लेवल का भी योगा कर सकते हैं। मैं लगभग 2.5-3 घंटा मुझे लग जाता है डेली का योगा करने में, और ये आसान नहीं है हर दिन 2.5-3 घंटा देना। अब आसान लगता है, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं इतना कैसे दे पाऊँगा, क्योंकि मैं एक मतलब फील्ड टीम को लीड करता हूँ, तो मेरा जो शेड्यूल होता है वो कभी कहीं इस तरह का रहता है। लेकिन जिस दिन से करना शुरू किया आज तक कभी मिस नहीं हो पाया। टाइमिंग का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो एक बार जब शुरू करेंगे आप तो फिर जब उसका फ़ायदा दिखेगा तो आप अपने आप करने लगेंगे, आप उसको प्राथमिकता देंगे। मेरे लाइफ में अब प्राथमिकता हो गया योगा कि कुछ भी हो जाए पहले मैं योगा ही करूँ। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।